Okay, let us begin with new chapter. मैम एक डाउट है। हाँ जी, पूछिए। मैम वैल्यू ऑफ सप्लाई जो चैप्टर था उसमें रूल 31 तक ही है ना? हाँ जी, बिल्कुल रोल नंबर 31 तक आपके सिलेबस में है। आगे भी रूल्स ओके हैं मैम, पर थैंक आपके यू। सिलेबस में 31 तक है, तो हमने सिर्फ 31 तक किया है। ओके मैम। ओके। अभी हम आगे करते हैं। रजिस्ट्रेशन इज अवर न्यू चैप्टर। इसमें हमारे पास देखो, इसमें बहुत सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने ना इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर किया था उसमें आपको ऑलरेडी ये चीज़ें पता थी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको पढ़नी पड़ेंगी एग्जाम ये इसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विथ registration chapter. Now, I hope you know what is registration. Registration is most fundamental requirement. It is fundamental means generally available to everybody. It is applicable to everybody. Standard for everyone. See, rules are same for everyone. No? Likewise, registration procedure is also same for everyone. So fundamental requirement है ये for identification of taxpayers ensuring tax compliance in the economy. Because persons will get registered and therefore government will come to know how many taxpayers are there. Okay, without registration a person can neither collect tax from his customers nor claim any input tax credit of the tax paid by him. uh, uh, Means if you are not registered, then you cannot either collect taxes from your customers nor you can claim ITC, because to claim ITC you need to be registered. Okay, and to collect taxes from the customer you need to be registered. So registration, to get a registration is always a beneficial part. Registration of any business entity under GST law implies opting a unique ID number. You will get a unique number from a concerned. We will understand later on. Unique number is given and how it has to be made. Okay, I mean you will not be making it. It will be made. So how it is made by income tax authorities, we will understand that also. From concerned tax authorities, the unique ID number will be given from concerned tax authorities for the purpose of collecting tax on behalf of the government and to avail ITC on the taxes paid on inward supplies. Because you want to claim the ITC, so you should have unique number for that, for your business. To obtain unique number, you need to have a registration. Otherwise, suppose if you are not registering yourself under GST portal, so you will not get unique ID number. So that unique ID number helps you get registered and to avail ITC and other benefits related to GST laws. Okay. Next is advantages. We have so many n number of advantages, but a few are listed here. See, advantages of getting yourself registered. He is legally, now once you are registered, suppose a person becomes registered. Now he is legally recognized as the supplier of goods or services. Legally recognized means because you are registered under government laws, GST laws. Therefore, you are legally recognized supplier. You are that shopkeeper on which persons will trust. Automatically a trust comes on because you are registered under GST laws. You cannot lie because you are registered under a law. Okay, you are using those laws in your day-to-day business routine transactions. Yes, he is legally authorized to collect taxes. Once you become registered, you are legally authorized. You have authority to collect the tax from the customers and also to claim ITC. That is what is written here, and pass on the credit of the taxes paid on goods and services supplied to the purchaser or the recipients. That means when you purchase the goods, you pay the tax, and that tax is passed on to the recipients. That means ITC is claimed. You recover the amount from the recipient, no?
and the amount that is recovered is known as the tax that is collected from the customers, and the amount that is paid to the creditor, the purchaser, is known as output tax liability, and from output ITC is claimed. Okay. Next is he can claim ITC of the taxes paid and can utilize the same for the payment of taxes due on supply of goods and services. Of course, once you are registered, you can claim ITC also. Next is seamless flow of ITC from suppliers to recipients at a national level. See, any state you supply goods, any state, it should be within India. It should be within India. If it is supplied within India at a national level, any type of customer would be there, no? Take any type of customer, whether it is interstate, whether it is intrastate, you will be eligible to get ITC. ITC is available at interstate level also. ITC is available at intrastate also. So it is like a benefit given to you that ITC can be claimed from the suppliers to the recipients at the national level. Next is registered person is eligible to apply for government bids, contracts, agreements, assignments, etc. Once you become registered, you become a recognized supplier, no? And once you become a recognized supplier, government, you can enter into the contracts of the government also. Like government is giving the contract to big companies, established companies, well-known companies like Reliance company. The government has given the contract, no? Which contract? मेट्रो वाला कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको पता होगा तो रिलायंस को दिया था. जो मेट्रो बना ना अपना मुंबई में घाट के ऊपर से वर्सोवा तक, वो रिलायंस को दिया गया था ना. तो रिलायंस इज एन एलिजिबल, रिलायंस इज अ वेल नोन कंपनी, इट इज अ रजिस्टर्ड कंपनी. तो गवर्नमेंट की कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करने के लिए, असाइनमेंट्स में एंटर करने के लिए आपको है ना रजिस्टर्ड पर्सन होना पड़ता है. तो ये भी तो एक फायदा है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो जाओगे तो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप एंटर कर सकते हैं इजीली. रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी कैन इजीली गेन ट्रस्ट फ्रॉम द कस्टमर्स. ये हमने पहले ही डिस्कस किया कि कस्टमर्स का अगर ट्रस्ट गेन करना है इजीली तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हो जाओ. रजिस्टर्ड हो जाते तो हमको पता है कि ये चीट नहीं कर सकता, ये तो लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, इसके ऊपर तो पेनल्टी लग जाएगी अगर ये चीट करेगा तो, है ना. कोई भी इलीगल एक्टिविटी वो नहीं कर सकता, ये हमको पता होता है. सो दैट्स वाई कस्टमर्स का हम ट्रस्ट इजीली गेन कर सकते हैं. ठीक है. थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है ये हम पहले पढ़ चुके हैं. इट इज वेल नोन टू यू, इट इज वेल नोन टू यू. इट इज जस्ट अ रिविजन पार्ट. ये जो स्लाइड है आपके लिए जस्ट अ रिविजन है, क्योंकि अभी हम स्पेसिफिकली अभी हम रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कर रहे हैं, तो अब ये वाली पॉइंट्स तो हमको करनी पड़ेंगी. ठीक है ना. अब जो सेक्शन नंबर 22 है वो बताता है आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है. व्हाट इज थ्रेशोल्ड लिमिट? द सीलिंग लिमिट, जिसे कहते हैं ना सीलिंग, यहाँ तक पहुंच गए ना, इसके ऊपर नहीं जा सकते, तो रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बेशक ऊपर जाइए. ठीक है ना. अब आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं. एवरी सप्लाई shall be liable to register under GST. Actually, it should be supplier. Every supplier shall be liable to be registered under GST other than special category states from where he makes a taxable supply of goods. मैं goods की बात कर रही हूँ अभी. From where he makes a taxable supply of goods if his aggregate turnover in the financial year exceeds rupees 40 lakhs. Very important. Very important. If your turnover, suppose you are a supplier and your turnover is exceeding rupees 40 lakhs and you are a supplier of goods, your turnover is exceeding rupees 40 lakhs. The moment your turnover exceeds rupees 40 lakhs, you have to get yourself registered. Compulsory. Compulsory. Means below 40 lakhs, it is voluntary. See, section 24 says, I was discussing section 22, no? In between, I am taking section number 24. What 24 says? Section number 24 says, whosoever is below 40 lakhs can also register, and those persons will be voluntarily registering themselves in the GST portal.
इसका मतलब है अगर 40 लाख से आपका नीचे टर्नओवर है तो भी आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। बहुत अच्छी बात है रजिस्ट्रेशन लेने के। अभी अभी हमने फायदे सुने, अभी अभी हमने देखा ना, इतने सारे फायदे हैं रजिस्ट्रेशन लेने के। आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, कस्टमर से टैक्स ले सकते हैं, रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइजर बन जाएंगे, रजिस्टर्ड सप्लायर बन जाएंगे, है ना। और फिर उसके बाद कस्टमर्स का गेन भी, कस्टमर्स का ट्रस्ट भी गेन कर सकते हैं इजीली, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकते हैं इजीली। तो हमने अभी इतने सारे एडवांटेजेस पढ़े, तो इनमें से कोई भी एडवांटेज अगर आपको लेना है तो आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। और वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन किस कैसे लोगों के लिए अवेलेबल होती है? जो 40 लाख के टर्नओवर के नीचे होते हैं। देखो 40 लाख के टर्नओवर को आपने क्रॉस कर लिया तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ना। इनफैक्ट तब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, हर एक दिन का इंटरेस्ट लगता है, आपको पता है? एवरी डे का इंटरेस्ट लगता है, एवरी डे। मैं मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर डे की बात कर रही हूँ, पर डे। इतना इंटरेस्ट होता है कि आपको हर दिन का इंटरेस्ट भरना पड़ता है, क्योंकि आप उतने दिन लेट कर रहे हो ना रजिस्ट्रेशन करने में। इसके लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर डेज के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करती है, आपको पनिश करने के लिए आपको पेनल्टी चार्ज करती है। ठीक है, तो आपने 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर लिया ना तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, किस चीज का 40 लाख का टर्नओवर? गुड्स का। और टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट टर्नओवर। इसका हमने ना फर्स्ट नहीं लेवी एंड कलेक्शन वाला जो चैप्टर पढ़ा था तब हमने एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन पढ़ा था, याद है? डोंट वरी, याद नहीं है तो मैंने वापस यहाँ पे इंक्लूड किया, सेम वो सेम चीज मैंने यहाँ पर वापस इंक्लूड की है कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या लेते थे और क्या क्या छोड़ना चाहिए हमको। आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हुआ नॉर्मल स्टेट्स के लिए 40 लाख। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हुए तो वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, याद आया? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से होते हैं? ये वाले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ये होते हैं 11 स्टेट्स। देखो एज पर द एक्सप्लेनेशन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 22, हम अभी 22 ही कर रहे हैं। 22 में क्या बताया है? थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द रजिस्ट्रेशन। उसमें स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन से होते हैं? ये ना बताया गया है, देखो 11 स्टेट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। दीज आर 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और अगर आपका कोई ऐसा कोई स्टेट है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में आता है तो आपके लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट है वो 20 लाख होगी। आपके लिए जो एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट होगी वो क्या होगी? 20 लाख। ओके, तो याद रखना गुड्स के लिए होता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में। गुड्स के लिए नॉर्मल स्टेट्स का क्या है? 40 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड फॉर स्पेशल कैटेगरीज 20 लाख फॉर रजिस्ट्रेशन, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आते हैं सर्विसेज पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी सर्विसेज की। अगर आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए नॉर्मल स्टेट्स 20 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 10 लाख। मतलब आप देखोगे ना तो ये 40 से 20 हो गया, यहाँ पे 40 था गुड्स का, सर्विसेज का 20 हो गया, और जो स्पेशल कैटेगरी था वो 20 लाख से 10 लाख हो गया। हाँ, और ये तो हुआ आपका नॉर्मल। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आप लेना चाहते हो तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? हमने तो इसके सम्स भी किए हैं, इसके तो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। अभी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट आपको फिर से दे दी। फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स विथ एन एग्रीगेट टर्नओवर इन द 1.5 फाइनेंस, करोड़। वेरी गुड, 1.5 करोड़ इज योर थ्रेशोल्ड लिमिट। जैसे ही आप 1.5 करोड़ को क्रॉस करोगे तो आपको कॉम्पोजिशन स्कीम अवेलेबल नहीं है। अप टू 1.5 करोड़ तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। और ये किन के लिए है? ये स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए। ठीक है, वेरी गुड, याद है आपको, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
ओके, नाउ लेट अस शिफ्ट टू नेक्स्ट स्लाइड। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हमने अभी अभी डिस्कस किए। एग्रीगेट टर्नओवर, अब हम बार बार देख रहे थे एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 40 lakhs, एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड रुपीज 20 lakhs इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ऐसा पढ़ रहे थे ना हम। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर होता क्या है? देखो, टर्नओवर का मतलब होता है सप्लाई करना। कुछ को जब आप बेचते हैं ना, तो बेचकर जो आपने अर्न किया, सेल्स अमाउंट, दैट इज नोन एज टर्नओवर। आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ, मतलब आपने टोटल सप्लाई कितना किया। तो इसमें हमको कौन कौन सी सप्लाई चीजें लेनी है और कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी है एग्रीगेट टर्नओवर में, वो हमको चेक करना है। एक बार देख लेते हैं कौन से टर्नओवर, कौन सा एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। Aggregate value of all taxable supplies, that means first is aggregate value of taxable supply, मतलब आपको सारे के सारे जितने भी टैक्सेबल गुड्स को आप सप्लाई करते हो ना, सर्विसेज को, टैक्सेबल सर्विसेज, टैक्सेबल गुड्स, जिनको भी आप सप्लाई करते हो वो सब लेना है। उसके बाद आपको लेना है एग्जम्प्ट सप्लाईज, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना वो मैं बाद में पढ़ूंगी, एक्सक्लूडिंग वाला। अभी हम पढ़ रहे हैं इंक्लूडिंग क्या क्या है। पहले तो इंक्लूड है वैल्यू ऑफ ऑल द टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब आपने जितने भी गुड्स को, सर्विसेज को, टैक्सेबल गुड्स को और सर्विसेज को सप्लाई किया, उनकी वैल्यू इंक्लूड करनी है। एग्जाम सप्लाईज, मतलब आपने कुछ गुड्स ऐसे भी सप्लाई किए होंगे, कुछ सर्विसेज ऐसे भी सप्लाई किए होंगे जो कंप्लीटली एग्जाम्प्टेड है, पर सप्लाई तो हुआ ना। मुझे निकालना है एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट का मतलब है टोटल सप्लाई। बेशक आपने वो गुड्स को सप्लाई किया जो एग्जाम्प्टेड थे, पर सप्लाई तो किया ना। सप्लाई नेचर, सप्लाई की डेफिनेशन में तो आया ना वो, तो एग्जाम्प्टेड सप्लाई भी लेना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर आपने कुछ गुड्स कुछ सर्विसेज या दोनों आपने हमारे देश के बाहर भेजा, मतलब हमारे हमारे कंट्री से आपने बाहर एक्सपोर्ट किया, बेचा, सेल किया, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं ना। तो है तो सप्लाई वो भी, वो बेशक एक्सपोर्ट है, हमारे देश के बाहर जा रहा है, हमारी कंट्री के बाहर जा रहे हैं, लेकिन है तो वो सप्लाई ना। बेशक वो जीरो रेटेड सप्लाई है, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई होते हैं, हमने चैप्टर नंबर 1 से पढ़ा है, अभी तो हम लास्ट चैप्टर पे खड़े हैं, सेकंड लास्ट पे। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई होते हैं, उसका रीजन है डेस्टिनेशन हमारा इंडिया नहीं है, ये तो इंडिया से बाहर जा रहे हैं कुछ, ठीक है। जीएसटी नहीं लगती है, इसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई। पर सप्लाई तो है ना, हम निकाल दें टोटल सप्लाई। चलो, एक्सपोर्ट भी काउंट करना है, और क्या क्या काउंट करना है, इंटर स्टेट सप्लाईज, वो भी काउंट करना है। विथ सेम पैन, अगर आपका सेम पैन के अंडर में आप किसी और डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई कर रहे हो, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। हेड ऑफिस ब्रांच को सप्लाई करता है ना, तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गया एक दूसरे के लिए, पर है तो सेम पैन के अंडर में, एक ही बिजनेस के अंडर में रजिस्टर्ड है ना, तो इंटर स्टेट सप्लाई भी काउंट करना होता है एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में। अब देखते हैं एक्सक्लूड क्या क्या करना है। टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस बट एक्सक्लूड्स सेंट्रल टैक्स, मतलब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस, ये टैक्सेस इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो हम निकालेंगे ना। टोटल वैल्यू निकालने के बाद हम देखेंगे कि वैल्यू पे टैक्स कितनी लगानी है, अभी हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में सीखे थे। अच्छा, और एक चीज एक्सक्लूड करनी है, हाँ बिल्कुल हिमांशु, वेरी गुड। एक्सक्लूड एक और चीज करनी है, जो ऊपर मैंने ब्रैकेट छोड़ दिया ये वाला, और वही ब्रैकेट यहाँ पर लिखा हुआ है पहली पॉइंट टेबल के अंदर राइट हैंड साइड, इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर आरसीएम। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को क्यों यहाँ से एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उस पे तो आपको टैक्स भरनी है ना, उस पे तो कुछ नहीं, और वो है ना एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो मैं गुड्स ले रही हूँ, सप्लाई थोड़ी कर रही हूँ। आरसीएम के अंडर में जब हम टैक्स भरते हैं ना, रेसिपिएंट जब भी टैक्स भरता है, तो वो तो मैं इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड मीन्स खरीदे हैं गुड्स, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है, टर्नओवर मतलब जो सप्लाई की है मैंने गुड्स, ठीक है। समझ में आया ये एक्सक्लूड क्यों होती है चीजें।
चलो, ये एग्रीगेट टर्नओवर तो हमको सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। मतलब यानी कि अब आपको हर बार समझना है कि अगर एग्रीगेट टर्नओवर, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। ये देखो, ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट इज दिस मच, एग्जम्प्टेड गुड्स का वैल्यू इतना है, इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन इतना है, सप्लाई ऑन ओन अकाउंट मतलब टैक्सेबल सप्लाई इतना है, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा। अच्छा, अगर एग्रीगेट टर्नओवर इतना होगा, 40 लाख होगा, तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एक्सीड 40 लाख, सॉरी, तो 40 लाख तक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो मैं नीचे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर मैंने आपको ये सारी चारों चीजें दे दी, ये चारों चीजें अगर मैंने आपको दे दी एमसीक्यूज में, ठीक है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा वेदर ही इज एलिजिबल फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, तो आप बोलेंगे येस और नो। अब येस और नो का आंसर तो तब पता चलेगा ना, जब इनकी वैल्यूज को आप टोटल करोगे, और टोटल करने के बाद आपको पता चलेगा 40 लाख के नीचे आ रहा है कि 40 लाख के ऊपर जा रहा है। और अगर 40 लाख के ऊपर जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे, मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंडर में आ जाएंगे आप। ठीक है, तो एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, सो बी वेयर। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि ये तो थ्योरेटिकल अभी पूछेंगे नहीं, शॉर्ट नोट तो आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेक्शन नंबर 23। अभी हमने कौन सा किया था, 22, जिसमें थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई थी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, टुगेदर विद स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ठीक है, ब्रैकेट में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी हुई है, गुड्स की अलग, सर्विसेज की अलग है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 23 पे। बहुत सिंपल है, अभी समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। ये ना वो दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक्शन नंबर 22 मतलब हु इज लाइबल फॉर द, सॉरी, सेक्शन नंबर 22 मतलब थ्रेशोल्ड फॉर द लिमिट, थ्रेशोल्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कौन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, हु इज नॉट लाइबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंडर में आप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं। ऐसे कौन से पर्सन है जो रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, बिना पढ़े, बिना ये स्लाइड को रीड किए आप बता सकते हैं कौन रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता है। हुँ? जो सारे के सारे गुड्स, वो जो ऐसे, आइसक्रीम, टैबाको, पान मसाला। नहीं नहीं, वो तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आप चले गए। नहीं नहीं, ओके ओके। ना ना, आप मिक्स कर रहे हो, बिल्कुल मिक्स कर रहे हो। वो तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो आप। अगर आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, ये सब आपके प्रोडक्ट्स है ना, मैन्युफैक्चर अगर आप ये करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, ये वो वाली पॉइंट्स हैं जिसमें हमने कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में पढ़ा था कि ऐसे वाले पर्सन जो मैन्युफैक्चर करते हैं आइसक्रीम, टोबैको, पान मसाला, इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, आईटीसी क्लेम करते हैं, वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हैं। अब मैं बोल रही हूँ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अब तो मैं कॉमन रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ, कॉम्पोजिशन स्कीम के रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ। अब मैं कॉमन रजिस्ट्रेशन, जो जीएसटी पोर्टल पे आप कॉमन रजिस्ट्रेशन लेते हैं ना, वो वाली रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है। ओके, हाँ, अच्छा हुआ एटलीस्ट आपने आंसर किया, तो आपका डाउट क्लियर हुआ कि दो अलग अलग चीजें हैं। चलो, एनीवेज, सेक्शन नंबर 23 क्या बोलता है, एक्सप्लेन्स अबाउट दोज पर्संस हु आर नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। बहुत सिंपल है, लॉजिक है, आप अपना लॉजिक लगाए ना। कौन रजिस्ट्रेशन जीएसटी के पोर्टल पे आके नहीं ले सकता, ऐसे पर्संस जो जो ऐसे गुड्स को बेचते हैं जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, याद आया, जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, तो जीएसटी के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे आके आप करेंगे क्या, जब ऐसे गुड्स में आप डील करते हो जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, हाउ वुड यू बी गेटिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी पोर्टल। जब वो गुड्स में आप डील ही नहीं करते हो जो जीएसटी के परव्यू में आते हैं, जो दायरे में, परव्यू मतलब जो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आते हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन लेंगे कैसे। ठीक है, ऐसे गुड्स जो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। अच्छा, ऐसे गुड्स जिनके ऊपर टैक्स लगती ही नहीं है, होली एग्जम्प्टेड, सिर्फ और सिर्फ ऐसे गुड्स में आप डील करते हो जो होली एग्जम्प्टेड हैं, तो आप क्यों जीएसटी के पोर्टल पे आके रजिस्ट्रेशन लेंगे, रजिस्ट्रेशन लेकर करेंगे क्या।
जब आप गुड सप्लाई करते हो, ऐसे वाले गुड सप्लाई करते हो जो टैक्स फ्री हैं, ना आप कस्टमर से आगे चल के टैक्स ले पाओगे, क्योंकि टैक्स फ्री गुड सप्लाई कर रहे हो ना। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तो इनके ऊपर थोड़ी कोई टैक्स लगती है, जीएसटी लगती है, तो जीएसटी में है ये, लेकिन होलली एग्जम्प्टेड है। तो आप रजिस्ट्रेशन लेकर करेंगे क्या? ना आप कस्टमर से टैक्स ले सकते हैं, ना गवर्नमेंट को भरोगे। बात समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है? हाँ या नहीं? यस मैम। हाँ, तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। यू आर नॉट लाइबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब आगे देखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ, किसके सप्लाई में क्या सप्लाई कर रहे हैं मिस्टर एक्स? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो ऐसे पर्सन्स जो जो ऐसे गुड्स को सप्लाई करते हैं जो जीएसटी के पर्दे से बाहर है, इज नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उनका टर्नओवर कितना भी रहने दो, 1 करोड़ क्यों नहीं रहने दो, 2 करोड़ 3 करोड़ क्यों नहीं रहने दो, 40 लाख से ज्यादा ही क्यों नहीं रहने दो, तो भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर अभी तक वो पुरानी टैक्सेस ही एप्लीकेबल चल रही हैं, अभी तक वो जीएसटी के दायरे में नहीं आया। इनफैक्ट अगर जीएसटी के दायरे में आएगा तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा, टैक्स कम करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को अल्कोहलिक लिकर पे। और इनफैक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स पे टैक्स कम नहीं, गवर्नमेंट बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? क्योंकि जैसे लोगों को ये प्रोडक्ट महंगा लगे, महंगा लगेगा तो कंज्यूम कम करेंगे ना। तो ऐसी चीजों का तो कंजम्पशन इनफैक्ट गवर्नमेंट को कम करना है, बढ़ाना थोड़ी है जो टैक्स कम करेंगे। चलो आगे देखते हैं। कंपल्सरी, अब हमारा शुरू होता है सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले तो हेडिंग पढ़ लो, उससे ही समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन आता है सेक्शन नंबर 24 में। अब सेक्शन नंबर 24 क्या बोलता है? persons who are liable for the compulsory registration even if they are not crossing the turnover, aggregate turnover of 40 lakhs. सपोज आपका टर्नओवर 40 लाख से क्रॉस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भी आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे कौन से पर्सन्स हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहला कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, दूसरा इनपुट सर्विस। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? अभी हम जो जो न्यू चीजें है ना वो मैंने नीचे दी हुई है, देखो ये आपके लिए नया है। सीटीपी मैंने आपको पहले भी बोला था, ये सीटीपी है ना, ये मैंने पहले आपको शॉर्ट में बता दिया था, मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब आ गया ये सीटीपी। सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। फिर उसके बाद है आईएसडी। आईएसडी का मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन होता है। ठीक है, ये ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने इसका अलग से स्लाइड नहीं डाला है, बता दूंगी मैं ये क्या होता है। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब होता है जो नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया में नहीं रहता है और वो टैक्सेबल यहाँ पे सर्विसेज सप्लाई करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, नॉन टैक्सेबल रेसिडेंट पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, उसके बाद है हमारा सब क्या है, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो सिंपल है। इंटर स्टेट सप्लाई मतलब आप किसी और स्टेट में गुड्स को सप्लाई और सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई करते हैं किसी और स्टेट में, मतलब अपने स्टेट से बाहर, उसे कहते हैं इंटर स्टेट। ये तो सिंपल है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंटर स्टेट वो होता है जो एक स्टेट से बाहर होता है, मतलब दो स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन। इंट्रा नहीं बोल रही हूँ, इंटर स्टेट। इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट्स के बीच में जब सप्लाई हो रहा है तब आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है। सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू इको। इको इज इकोनॉमिक बोल रही, सॉरी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स पोर्टल मतलब जैसे अमेजोन, मिंत्रा, और जैसे आपका ये हो गया, खाने का क्या मंगाते हैं, कहाँ से मंगाते हैं, स्विगी, है ना, ये ई कॉमर्स पोर्टल है ना। तो जब आप गुड्स को सप्लाई करते हो ई कॉमर्स के थ्रू, ठीक है। Persons who are taxable supply of goods and services or both on behalf of another taxable person, whether as an agent or otherwise. अगर आप एजेंट के थ्रू गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो भी आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लाइबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें तो पक्का आपको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप आरसीएम के अंडर में आ गए ना,
आपको तो पक्का रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आरसीएम में तो आपको टैक्स भरनी ही पड़ेगी ना, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेकर टैक्स भरनी पड़ती है। अगर आप किसी का टीडीएस और टीसीएस काटते हैं, आप अगर टीडीएस डिडक्टर है या फिर टीसीएस डिडक्टर है, मतलब टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो किसी का टीडीएस काटते हैं, टीसीएस काटते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लेनी पड़ेगी, चाहे आपका टर्नओवर 40 लाख के नीचे ही क्यों नहीं। ऑनलाइन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर, ओइदार, मैंने आपको बताया था पहले वाले चैप्टर्स में, ओइदार, ओइदार इज ऑनलाइन डेटा एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस प्रोवाइडर। ओइदार, this is O I online, धार इज डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। सो ओइदार हमने उसको कहा था, वो भी हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। ये देखो ओइदार दिया था, दिख रहा है आपको यहाँ पे, आपको मैंने पहले भी करवाया था, मैंने बोला था हम अभी नहीं करेंगे डिटेल में, हम बाद में करेंगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये सारे पर्सन्स वो हैं जो जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सीटीपी। अब सबसे पहला है, देखो बहुत सारे तो सिंपल है, जैसे इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लायर ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल जैसे अमेजॉन। अब मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ गुड्स, लेकिन मैन्युफैक्चर करके ना मैंने दे दिया अमेजॉन को कि आप मेरे गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाओ। तो अब जो मैं मैन्युफैक्चर कर रही हूँ ना गुड्स, मैं सप्लाई कर रही हूँ ना इको के थ्रू, तो मेरा 40 लाख के नीचे ही क्यों नहीं है टर्नओवर बेशक, तो भी मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरी। क्यों? क्योंकि मैंने गुड्स को कहाँ, किसके थ्रू सप्लाई किया, ई कॉमर्स पोर्टल। सेम होता है एजेंट, किसी एजेंट के थ्रू सप्लाई किया तो भी मुझे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर में भी, टीडीएस टीसीएस कलेक्टर हो तो भी, ओइदार वो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो जो कॉमन थी ना बीच में 3-4 चीजें, वो हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इजी था वो, ठीक है ना, सिंपल था, सिंपल टू अंडरस्टैंड, तो मैंने अलग से स्लाइड नहीं बनाया उसका। ओके, लिसन, 5 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। ओके, जस्ट 5 मिनट्स। हाँ, 1 o'clock शार्प